Hello student, I am Pramod sir, your math teacher. Welcome to everybody today's online class. Student, today I am going to make part 3 introduction for the chapter comparing quantities. And today's topic is profit and loss. So, student, all of you know very well the meaning of the profit and loss. Profit means love. That amount which we gain extra for selling any item, that is profit. And loss means honey, the amount which we gain after selling any item less than cost price. जिस चीज को जितने में मैं खरीदा हूं अगर उससे कम में बेच रहा हूं, it means that is loss. So, student, it is the meaning of the profit and loss. So, सबसे पहले student, there are many terms we use in topic profit and loss. So, first term is CP. CP means cost price. Cost price. Cost price. What is the cost price? Cost price, the buying price of any item. The buying price of any item is called the cost price. Is called cost price. Cost price. It is written in short CP. So this is the cost price, means the buying price of any item is called the cost price. किसी का जितने में हम किसी भी आइटम को, किसी भी वस्तु को जो हम खरीदते हैं, that is the cost price. Suppose that this is a pen and I am purchasing this pen, suppose 10 rupees. So the cost price of this pen is 10 rupees, student. So I hope your concept is clear on CP. And second terms is selling price. Selling price. Selling price, what is the selling price? The price at which we sell any item is called selling price. Is called selling price, and it is written in short form inside SP. Look here. So, जितने में हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं, सेल करते हैं, that is the selling price. वो क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है. So, student, this is the cost price and this is the selling price. ये cost price और selling price है.
Now, student, I am going to tell you some formula related to profit and loss. अब हम प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ फार्मूले आपको बताएंगे. सो स्टूडेंट, means how can we find out the CP and how can we find out the SP? हम SP और CP कैसे निकालते हैं ये चीज मैं आपको बताऊंगा. सो student, I am taking an example here for finding the CP and SP. Suppose that I have purchased a t-shirt. एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूं. मैंने एक खरीदा टी शर्ट. सपोज दैट आई हैव परचेज्ड टी शर्ट एज 120 रुपीज. 120 रुपीज का मैंने टी शर्ट खरीदा. सपोज दैट so 120 rupees you are purchasing the t-shirt, so 120 is called the CP. ये क्या है? CP. 120 rupees क्या है? CP आपका है. Why? Because you are purchasing t-shirt at rupees 120. आप 120 rupees में खरीद रहे हैं. So this is CP. And if you are a businessman and you are selling this t-shirt, then selling price and sell it 100 rupees. और ये बेचा कितने में गया? 100 रुपीज में बेचा गया. ये 100 रुपीज में बेचा गया. सो दिस इज SP. ये क्या है? SP. व्हाई? बिकॉज इट इज सोल्ड एट ₹100, क्योंकि 100 रुपीज में सेल किया जा रहा है. सो दिस इज द SP. एंड 120 रुपीज में खरीदा गया. सो दिस इज द CP. So, if I ask you, tell me in this question, businessman get profit or loss? Then student, you are seeing here that CP is greater than SP. CP जो है SP से ग्रेटर है. CP SP से ग्रेटर है. तो आप बताइए कि उस बिजनेसमैन को जिसने टी शर्ट को 120 रुपीज में खरीदा था और 100 रुपीज में बेच रहा है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? एब्सोल्युटली यू कैन से दैट सर बिजनेसमैन गेट द लॉस. उसको लॉस होगा. क्या होगा? लॉस होगा. सो व्हाई? बिकॉज CP इज ग्रेटर देन SP. आई एम राइटिंग हियर इफ CP is greater than SP, then लॉस होगा. क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगी. अगर CP SP से ज्यादा होगा तो क्या होगा? लॉस होगा. इट मीन्स लॉस. CP is greater than SP means loss. And in opposite way, if SP is greater than CP, then क्या होगा? प्रॉफिट होगा. आप कहेंगे कैसे? अरे भाई, अगर 120 रुपए का शर्ट आपने खरीदा और 100 रुपए में आपने सेल कर दिया, 100 रुपीज में सेल कर दिया, तो आपको 20 रुपीज का तो लॉस हो गया ना. बट हाउ कैन वी फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस? हम प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं? सो स्टूडेंट, फॉर सॉल्विंग दिस टाइप क्वेश्चन, फर्स्टली वी राइट एवरीथिंग which is given
इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले राइट करते हैं। इट मींस आपको क्या दिया है, सीपी दिया। अब देखिए मैं यहां पर प्रॉफिट निकाल रहा हूं, प्रॉफिट या लॉस में निकाल रहा हूं। क्या हो रहा है आपको, लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, तो लॉस हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, सीपी इज इक्वल टू 120 रुपीज एंड एसपी इज इक्वल टू ₹100। सो आपको हुआ क्या, लॉस हुआ। लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, दिस इज द फॉर्मूला। ये दिया जानिए आप, लॉस क्या है, सीपी माइनस एसपी मीन्स 120 माइनस 100 मीन्स 20 रुपीज का लॉस हो गया उसका। क्यों, क्योंकि 120 का खरीदा और 100 का बेचा, तो लॉस तो हुआ उसका 20 रुपीज उसके पॉकेट से गए। सो हियर यू आर सीइंग दैट 20 रुपीज ही हैड लॉस, वो लॉस कर दिया। In this way student, if we change this question, that businessman purchased t-shirt 120 and sell 200, suppose that कितने में सेल कर दिया, I have changed the question, 200 rupees, in 200 rupees businessman sold the t-shirt. Now what can you tell me, बिजनेसमैन विल बी इन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा। सो यू कैन से इजली बाय सीइंग द क्वेश्चन दैट बिजनेसमैन विल बी इन प्रॉफिट बिकॉज ही इज परचेजिंग टी-शर्ट 120 and sold in 200 rupees. So how can we find out the profit? For finding the profit, firstly we write the all things which is given, all information which is given in the question. So CP is equal to rupees 120 and SP is equal to rupees 200 student. So here you can say that businessman is in profit. So how can we find out the profit student? Which formula we use for finding the profit? Just opposite we write here, SP minus CP. SP में से जितने में सेल कर रहे हैं उसको मैं उसमें से CP को माइनस कर दूंगा जितने में खरीदा है। So SP is 200, CP is 120, so we get 80 rupees in profit. Businessman is in profit of 80 rupees, 80 rupees के प्रॉफिट में है। So student, you will learn and write these two formula. For finding the loss you will apply this formula, and for finding the loss and for finding the profit you will apply this formula. If cost price and selling price is given directly in the question and question is asking you profit and loss, then you can find easily by this formula. So student, I hope you have understood the concept of the profit and loss. So I am taking the second topic, second subtopic of the profit and loss topic is percentage in profit. Percentage, profit or loss as percentage. Profit or loss as percentage. In this topic, you need to find the profit and loss. You will tell the profit and loss. You will find out the profit and loss, but in percentage. You need to tell
प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंट, परसेंट में आपको बताना होगा, परसेंट में. बट इन दिस क्वेश्चन हियर you are telling the profit or loss in amount direct आप बता, this is not percent. You are saying here businessman is in profit, is in loss 20 rupees. 20 rupees you are telling here amount, not percent. You are telling here amount, not percent. आप यहां amount बता रहे हो, आप percent थोड़ी ना बता रहे हो. But in second subtopic we need to find out the profit or loss in percent. हमें परसेंट में बताना होगा. अब इसी सेम क्वेश्चन, इफ वी टेक सेम क्वेश्चन फॉर दिस सब टॉपिक, सो स्टूडेंट, टी-शर्ट, बिजनेसमैन परचेज टी-शर्ट एज ₹120, that is CP, and sell it ₹200, that is SP, you know. So question is asking you find the profit percentage. प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा आपको पूछ रहा है. प्रॉफिट परसेंट बताइए. सो स्टूडेंट, for finding the profit or loss in percentage we use the formula, but I am telling you here, student, I am going to tell you one things that is very very most important. Always we find the profit percentage or loss percentage on CP. ये चीज आपको ध्यान रखना है. दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. वॉट एवर आई एम सेइंग यू, ऑलवेज वी फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ऑन द सीपी, ओनली ऑन सीपी अमाउंट. हमें लाभ होगा, फायदा होगा या मेरा नुकसान होगा, वो किस अमाउंट पर होगा? सीपी पर हुई होगा. We compare from CP. हम CP से ही कंपेयर करते हैं. हमें फायदा हुआ या लॉस हुआ. अब देखिए 120 रुपीज में मैं खरीदा था, मैंने 200 रुपीज में सेल कर दिया, तो मैं जो फायदा और नुकसान मेरा जो होगा मैं तो इसी से कंपेयर करूंगा ना कि भाई 120 रुपीज में मैं खरीदा हूं, तो अगर 120 से मोर मुझे मिलेगा इट मींस आई एम इन प्रॉफिट. बट इफ वी गेट टू less than 120 after selling the things, it means I am in loss. इसका मतलब मैं क्या हूं? मैं लॉस में हूं. तो मैं जो कंपेयर कर रहा हूं वो मैं सीपी से ही कर रहा हूं. In this way student, always we get the profit loss percentage on CP. on CP हमेशा मैं सीपी पर निकालता हूं. अभी मैं आपको बताऊं कि यहां प्रॉफिट, सिर्फ मैं आपसे प्रॉफिट पूछ रहा हूं. प्रॉफिट क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर वेरी इजी. प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी. सो 200 माइनस 120 इज इक्वल टू ₹80. यू कैन से 80 रुपीज. बट आई एम आस्किंग यू, डोंट टेल मी profit in amount, tell me the profit in percentage. तो 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है कितने रुपीज पर? 120 रुपीज पर. 120 पर 120 का मैंने खरीदा था टी शर्ट, इसी अमाउंट पर मुझे 80 रुपीज का क्या हुआ है? फायदा हुआ है. सो we can write this statement in fraction form 80 upon 120. Look here student, it means out of 120 we get 80 rupees. 120 में 80 रुपीज हम तो ऐसे राइट करेंगे ना फ्रैक्शन फॉर्म में. सो दिस इज द फ्रैक्शन,
and for changing the percentage of this fraction we multiply by 100. So 10 cancel, and 2 6 ja 12, and 2 5 ja 10, and 2 3 ja 6, and 2 4 ja 8, 40, 45 ja 200, 200 upon 3. Now divide it. 3 6 ja 18, 2 3 6 ja 18. Look here student, 66% बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ फॉर सेलिंग दिस टी शर्ट ऑन दिस सीपी. 66% का हुआ. अभी तक आप जो 80 बता रहे थे ये तो आपने अमाउंट बता रहे थे कि 80 रुपीज का फायदा हुआ है, लेकिन अब आप क्या बता रहे हैं, इसी को क्या बता रहे हैं, 66.66%. हम इसको बोले या फिर इसको बोले, बात तो दोनों एक ही. ये परसेंट में हम बता रहे हैं और यहां पर अमाउंट में बता रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट दोनों है. प्रॉफिट तो दोनों है. ये 66% प्रॉफिट है और ये 80%, सॉरी 80 रुपीज प्रॉफिट है. So student, in this way it means you can say profit परसेंट इज इक्वल टू, आप देखिए यहां पर इसी को फॉर्मूला बना दीजिए. दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी into 100. This is the formula for the finding profit percent. And second formula we can use here, loss percent is equal to, on the place of profit we write loss upon CP, as same we write here, into 100. This is the formula for finding the loss percent. It means for finding the profit percent or loss percent, we have to find out profit and loss first. पहले हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना ही पड़ेगा. पहले हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे. मैंने प्रॉफिट यहां निकाला 80%, फिर ये 80% जो हमको फायदा हुआ वो किस अमाउंट पर हुआ, आउट ऑफ 120 पर हुआ. सो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट विच आई एम सेइंग यू इन फ्रैक्शन फॉर्म 80 अपॉन 120. जो मैं बोल रहा हूं, आउट ऑफ 120 on 120 rupees we get profit as 80 rupees. So we can write it in fraction form 80 upon 120, and this is the fraction, and you can change fraction in percent. So multiply by 100. So in this way student, you will find out the profit percent and loss percent. I hope student you have understood this subtopic. And here student, I am taking an example from your book, and you will try to understand, you will clear your concept by this example. I am writing the question first student here. Question is student, the cost of a flower vase, the cost of a flower
waste is rupees 120. If the shopkeeper, if the shopkeeper sells it at a loss of 10%, find the price at which it is sold. Now students, firstly try to understand the meaning of the question. Question is saying you the cost of a flower base is rupees 120. कोई फ्लावर बेस है, उसको शॉपकीपर ने खरीदा है, कितने में खरीदा है? 120 रुपीज में. So the cost of a flower base is 120. If the shopkeeper sells it at a loss of 10%, 10% लॉस उठा करके उसने इस फ्लावर बेस को बेच दिया. लॉस इज गिवन इन परसेंट, नॉट इन अमाउंट. अमाउंट में नहीं दिया है कि 10 रुपीज लॉस करके बेच दिया या 20 रुपीज, 100 रुपीज, कुछ भी ऐसा लॉस नहीं दिया है. लॉस इज गिवन इन परसेंट, लॉस ऑफ 10%. फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड. आपको वो प्राइस बताना है जिस प्राइस पर उसने फ्लावर बेस को सेल किया है. कितने रुपीज में, इट मींस सीधा सीधा आप समझिए कि कितने रुपीज में उसने फ्लावर बेस को सेल किया है. इट्स ओके. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट स्टूडेंट. सेलिंग प्राइस. Firstly, for solving this question student, whatever is given in this question, firstly we note it down. So CP, you know, CP is equal to rupees 120 and loss is given also. Loss is equal to 10%. And question is asking me selling price means SP. SP is equal to क्वेश्चन मार्क. SP मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितने रुपीज में वो सेल किया है. सो स्टूडेंट, आई एम डूइंग द रफ वर्क हियर. SP, यू नो SP कैसे निकालते हैं आप? SP अगर निकालना है आपको सेलिंग प्राइस तो कैसे निकालते हैं? या फिर आप लॉस निकालते हैं. देखिए जरा, लॉस निकालते हैं. लॉस कैसे निकालते हैं आप? SP माइनस CP. ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया. सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग हियर. CP माइनस SP, इट इज लॉस. लेकिन आपसे यहां क्या पूछ रहा है? आपको क्या निकालना है? SP फाइंड आउट करना है. यू नीड टू फाइंड आउट द SP. सो SP को ट्रांसपोज करिए इस साइड में, तो क्या होगा? SP इज इक्वल टू CP इज ऑलरेडी टू द लेफ्ट साइड, राइट साइड, एंड ट्रांसफर टू द लॉस टू द राइट साइड माइनस लॉस. देखिए इसी फार्मूले से मैंने इस फार्मूले को निकाला. इसको मैं डायरेक्ट SP नहीं फाइंड आउट किया. यहां पर मैं डायरेक्ट इस फार्मूले को राइट कर सकता था, बट आई हैव टोल्ड यू दिस फार्मूला, नॉट दिस फार्मूला. सो बाय दिस फार्मूला आई एम फाइंडिंग दिस फार्मूला. सो SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस.
सो स्टूडेंट, लेकिन अब आप देखिए 10% लॉस कितना हुआ, लॉस कितना, अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, लॉस कितना हुआ उसको 10%, 10%, 10% मीन्स 10% मीन्स 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100, 100 रुपीज में 10 रुपीज उसको लॉस हो रहा है। ये अमाउंट थोड़ी ना है, ये अमाउंट नहीं है, इसको हम डायरेक्ट परसेंट में राइट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100, लेकिन ये 100 रुपीज में 10 रुपीज लॉस हो रहा है, और उसने कितने का खरीदा था, 120 का। तो I have told you always we get the loss or profit on the amount CP, हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो भी निकलेगा वो 100 वो आपके CP पर निकलेगा। So you are seeing here that on 100 rupees he get loss 10 rupees. So how much he get loss on rupees 120 means 120 से मल्टीप्लाई करिए। So we can cancel here and can cancel, that is 12 rupees। अब ये रुपीज आया, अमाउंट में आपने बता दिया, अमाउंट में आपने बता दिया, इसने 10% बताया था और आपने अमाउंट में बता दिया कि कितने रुपीज का लॉस हो रहा है, 12 रुपीज का लॉस हो रहा है, 12 रुपीज का लॉस हुआ। और अगर मैं आपसे एसपी पूछूं, इसका मतलब एसपी क्या होगा, अब तो एसपी निकल सकता है क्योंकि लॉस आपने निकाल लिया, लॉस आपको आप निकाल लिए हैं, और प्रॉफिट सीपी इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो वी कैन राइट द डायरेक्ट फॉर्मूला, सीपी माइनस लॉस। सीपी इज 120 रुपीज माइनस 12 रुपीज, माइनस करिए 108 rupees. This is the SP. It means shopkeeper will sell the flower base at rupees 108. 108 rupees में, in 108 rupees shopkeeper sell your flower base. 120 का खरीदा लेकिन बेच कितने में रहा है, 108 का। इट मीन्स 10% उसको लॉस हुआ। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस part 4 of the introduction of this chapter, interest. So thank you student, thank you very much.